they don't have that correct picture. So whenever the child in a creative field suffers a setback, the parent is like, I told you, man, you should have done what I said. So how can a kid convince a parent so that they can convert them into a support system? Hello everyone, welcome to the after class. This is Madhav and today we have Sanjana Bhatia official. I really don't care about the word Sanjana and official because I've known her since 2010. So Bhatia, thank you so much for coming. Thank you, Madhav. Thank you for having me. How are you? I am doing good. How are you? I'm doing good. So to the viewers, let me tell you, if you guys don't know, Sanjana is what? Sanjana is a makeup artist slash wedding consultant, bridal consultant, right? Slash Instagram influencer, a lot of things, and IT engineer. Yes. So Sanjana, how did you get into all this stuff altogether? Well, IT की जॉब के साथ साथ I was always passionate about making content. So मैंने content creation शुरू किया था back in 2018. So 2018 में I used to create content on YouTube as well as on Instagram. But YouTube पे majorly मैं videos बनाती थी about fashion and beauty, lifestyle, इन सब के बारे में. So that's how I got into this world of blogging, YouTube content creation. और तब से ही मैंने ये journey अपनी start की. And throughout this process सीखा कि what is working for me, what is not working for me. And gradually I came into this bridal industry, bridal consultancy and wedding blogging. So were you always very interested in this field right from your school time, or you just happened to develop some interest while you were doing your job? No, I was obviously inclined towards this. हर लड़की को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैशन होता ही है, but मुझे काफ़ी ज़्यादा था. So I was interested in makeup ever since my childhood. तो मेरे बचपन में भी मेरे relatives और मेरी family members को ऐसी memories हैं when I'm using makeup and you know guiding people कि ऐसा कुछ पहन लो, ये कर लो, वो कर लो. So मेरा inclination obviously वहाँ से थी and speaking का मेरे को बचपन से ही शौक था. I was never shy of stage. तो कैमरा फेस करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. So that was comfortable for me, but अपना niche ढूंढना और क्या content बनाना है, that was little big task for me. Okay. Otherwise, इसमें slide in करना was not that tough. So how did your parents identify? Do they support you on this? Yeah, obviously they support me. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे rebel नहीं किया इस चीज़ पे. They are okay with it. But yeah, it's a process. अभी now when they see कि अच्छा reach है, content अच्छा बन रहा है, people are recognizing it, appreciation मिल रही है, and people actually listen to me, what I'm saying. लेते हैं वो एडवाइस, तो ऑब्वियसली दे नो दे सी सम सब्सटेंस इन इट. ओके, सो इज दिस द केस राइट फ्रॉम द स्टार्ट और नहीं, शुरू में तो ऑब्वियसली ऐसे ही था कि ठीक है कुछ कर रही है जॉब के साथ साथ, पैरेलली कुछ कर रही है पैशन के लिए या फिर टाइम पास के लिए, जो भी दे वर ओके विद इट. रादर मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर ने मुझे पहली बार कैमरा दिलाया व्हेन ही गॉट टू नो कि आई एम इनक्लाइंड टुवर्ड्स दिस. तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि ठीक है, यू वांट टू बाय अ कैमरा, गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई. पेरेंट्स नहीं तो पहले सिबलिंग्स तो समझ ही जाते हैं कि ठीक है कुछ तो कीड़ा है इसमें एंड शी वांट्स टू डू दिस. या सो बिग शाउट आउट टू हिज ब्रदर. व्हाट्स हिज नेम? युगल. ही इज इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, बट वहीं से पूरा सपोर्ट कर रहा है मुझे. You're awesome, man. You're really awesome. Okay, because there are very few families who actually push their kids towards some alternative fields. Yes, creative fields, artistic fields. Yeah, rather than the mainstream fields that are already existing in our society. So, what role have your parents played in this whole scenario? Like, not rebelling much and supporting you after they began to see that there is some growth. But apart from that, there must have been times where you must have felt low. And was there any time, and how did they deal with it? How did they push you? See, majority of my time हमारे parents के साथ we spend a lot of time, so it is a really good option to keep them on the same page. जो भी तुम्हारा thought process है, whatever you are going through, tell them. And it's not very difficult to convince them. तुम अगर उनको एक अच्छे पैटर्न में समझाओगे, सीक्वेंशली समझाओगे कि ये मेरा प्लान है, दिस इज माई एक्शन प्लान, मैंने एनालाइज किया है कि ये मार्केट है, बाकी लोग भी ऐसे कर रहे हैं, आई कैन ऑल्सो डू इट, मेरे पास ये टैलेंट है या कुछ है. इफ यू टॉक एंड इफ यू हैव द केपेबिलिटी टू कन्विंस देम, वो एक्चुअली में समझेंगे. सो तुम अगर खुद में कन्विंस्ड हो ना, you'll be able to convince them also. Right. So that is what I felt. And there are times when I am feeling low and I'm like, yeah, what am I doing? And that's the time when my mother supports me कि यार नहीं ठीक है, give it a try, अभी तक भी करती आ रही है, do it. So अगर तुम खुद में भी थोड़ा weak feel करते हो ना, then your family is there. अगर वो convinced हैं कि तुम्हारे में substance है और तुम कुछ कर सकते हो तो.
I think this is a very good point, because what I have seen generally is that a parent and a kid, they play in two separate teams actually. See, in the starting it's okay to not agree with such a field because everyone is scared of it. ठीक है, right? एकदम से तो कोई jump in नहीं करता, हर कोई starting में डरता ही है. You were very good at convincing your parents on this, and that is why you converted them into a support system, right? There are kids who are very bad at convincing their parents. I mean, they have that passion for that field, but they are not good at convincing their parents. So whenever something wrong happens, their parents try to hold them back, which I don't think is wrong, because their parents aren't shown the correct picture. Because the responsibility of showing that correct picture is the kid's responsibility, right? So they don't have that correct picture. So whenever the child in a creative field suffers a setback, the parent is like, I told you, man, you should have done what I said. So how can a kid convince a parent so that they can convert them into a support system? See, let's try to understand कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके पेरेंट्स नहीं हैं. Right. उनके पास 50-60 इयर्स का लाइफ एक्सपीरियंस है. उन्होंने अपने लाइफ में देखा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यही है मेन प्रोफेशंस जो चलते हैं. एंड दैट्स वाई उनका हमेशा रहता है कि हमारे बच्चों को भी वो इसी के लिए पुश करें. सोसाइटी में उनके कोलीग्स, सबके बच्चे यही सेट पाथ फॉलो करें, एंड दे वांट कि हमारे बच्चे भी सिक्योर पाथ पे चले, विच इज़ नॉट अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अगर हम पेरेंट्स के माइंडसेट से समझें. बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास एक ऐसा स्किल सेट है, एक ऐसा पैशन है जिसको मैं करियर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. सी, साइड हॉबी होना इज अ डिफरेंट थिंग. उसके लिए आपके पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे. आप 8-9 घंटे जॉब कर रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद आप कुछ कर रहे हो, नोबडी विल हैव प्रॉब्लम विद इट. बट व्हेन यू से कि आई वांट टू टेक अप एज अ करियर, ऑब्वियसली दे विल आल्सो हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट. दे विल हैव क्वेश्चंस. वो आपसे पूछेंगे कि क्यों, क्या, किस लिए. अगर आप खुद कन्विंस्ड हो ना, अगर आपने एनालाइज कर रखा है एंड यू आर श्योर ऑन योर ओन सेल्फ कि ठीक है यार, व्हाट एम आई डूइंग, मैं इसमें सक्सीड कर सकती हूँ, यू कैन डेफिनेटली आस्क योर पेरेंट्स फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 or 2 years कि ठीक है, मुझे आप 1-2 साल दो, लेट मी प्रूव माई सब्सटेंस, लेट मी प्रूव माई मेटल, एंड अगर आप सक्सीड करते हो, योर पेरेंट्स विल बी मोर देन हैप्पी. बट ऑन द अदर हैंड, जब पेरेंट्स मना करते हैं, दैट इज द सिचुएशन जब आप 11th-12th के बाद ही अपने पेरेंट्स को बोलने लग जाते हो कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, नाउ आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन. मुझे गिटार पसंद है, मैं गिटारिस्ट बन रहा हूँ 12th के बाद ही. मुझे ड्रम्स पसंद है, मुझे पेंटिंग पसंद है, एंड आई विल गो ऑन माई ओन वे. दैट इज वन, जब पेरेंट्स को ट्रबल होनी शुरू होती है, जब वो डाउट करना शुरू करते हैं अपने बच्चों के चॉइसेस पे. बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, यू वुड ऑल्सो एग्री टू दिस कि एक एजुकेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है. वी बोथ आर बीटेक, सो एटलीस्ट वी हैव अ बैकिंग. कुछ नहीं काम कर रहा हमारी जिंदगी में, वी गो बैक टू आवर इंजीनियरिंग जॉब्स, वी हैव अ फॉल बैक अपॉन. और अगर ये सिक्योरिटी तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं है, तुम्हारे लिए, दे विल बी वरिड, दे विल हैव ट्रबल्स. सो व्हाट आई से इज कि अपने आप को करियर अगर आपको बनाना ही है किसी भी फील्ड में, उससे पहले एक डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है. गो टू कॉलेज, एक्सपीरियंस करो वो लाइफ, थोड़ा कुछ पढ़ो, थोड़ा नॉलेज गेन करो, स्किल सेट को अपने इंप्रूव करो, और उसी के साथ साथ अपनी हॉबी पे भी काम करो. बट ऑन द ऑल्टरनेट, अगर तुम कहो कि मुझे कॉलेज ही नहीं जाना, आई वांट टू बी रिबेल, और मैं बिल्कुल ही अपना यहाँ से निकल पड़ूंगा, ऑब्वियसली पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे. सो आई अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स साइकी ऑल्सो, अंडरस्टैंड फ्रॉम कहाँ से ये सारा उनका डाउट्स आ रहे हैं, अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड ऑल्सो, एंड देन रिएक्ट. आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन जो तूने दी है, आई थिंक ये क्रेडिबल भी है, बिकॉज यू आर समवन हु हैज मैनेज दिस थिंग अलॉन्ग विद योर जॉब. तो हाउ डू यू मैनेज अ लॉट ऑफ स्टफ ऑल टुगेदर? सी, अगर तुम्हारी एक जॉब है जिससे तुम डिससैटिस्फाइड हो, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुश नहीं हो, रोते रोते सुबह जाते हो क्रिप करते हुए, तो तुम्हारे को तो ऑब्वियसली ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कुछ करने की. एंड दैट इज द केस विद अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गेट इनटू क्रिएटिव फील्ड कि यार डे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अपना करना है. सो 24 आवर्स में से अगर तुम 9-10 घंटे अपनी जॉब पे निकाल रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसके बाद भी तुम दिन में एटलीस्ट 2 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो. एंड आई कैन गारंटी यू, अगर तुम 2-2 घंटे रोज निकाल रहे हो फॉर एटलीस्ट 1 year, कुछ ना कुछ आउटकम उससे ज़रूर निकलेगा. इट विल स्टार्ट पेइंग यू. सो ऑल यू नीड टू डू इज अपना टाइम ऐसे मैनेज करो कि एटलीस्ट 2 घंटे तो तुम निकाल ही सको. मेरी जॉब थी, आई वॉज इन बैंगलोर, तो मैं डे जॉब करके आती थी, ट्रैवल करके, आई यूज्ड टू कम बैक, एंड तब मैं फिर शूट करना शुरू करती थी 1 घंटे के रेस्ट के बाद ही. सो मैं पम्प्ड अप रहती थी, आई वुड बी सुपर एक्साइटेड, रोते रोते सुबह जाती थी, पर ओवर एक्साइटेड होकर घर आती थी कि नहीं अब मेरे को शूट करना है. आई यूज्ड टू गो बैक होम, जल्दी से फ्रेशन अप होके, कैमरा मेरा सेट रहता था, कंटेंट मुझे पता होता था मुझे क्या बोलना है, एंड आई यूज्ड टू डिलीवर माई कंटेंट. सो यूट्यूब की वीडियोस और सब मैंने बनाया. और 2 घंटे का टाइम बहुत होता है. अगर तुम 5 दिन भी देख रहे हो तो तुम्हारे पास 10 घंटे हैं वर्किंग डेज में. सैटरडे संडे तो तुम्हारे पास है ही अपना. सो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कुछ भी अपना साइड बिजनेस, साइड हसल के लिए 2 घंटे अगर तुम दिन के दे रहे हो ना, बहुत सफिशिएंट है. जॉब में तुम क्रिप कर रहे हो, उसके बाद भी आके तुम क्रिप ही कर रहे हो यार कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी ऑफ एनी यूज.
सो अपना टाइम अच्छे से यूज़ करो और अपने टारगेट के लिए एम करो, यू विल डेफिनेटली अचीव इट. But I think that is only true if you do not take that thing as just a hobby. You have to Exactly. take it as a side business, like you said. सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. हॉबी होती तो बस मैं सोच लिया, ठीक है, कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को उसको एक ऑल्टरनेट करियर बनाना है, तुम्हारे को उससे इनकम आए, यू नीड टू वर्क ऑन इट. एंड कैसे करना है कि यार ठीक है, प्लान आउट योर टाइम कि आज मैंने कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब आज मैंने शूट करना है, कल मैं एडिट करूंगी, परसों मैं अपना कंटेंट लिखूंगी कि मुझे बनाना क्या है, अगले दिन मैं सारे डीएम्स का रिप्लाई करूंगी, उसके अगले दिन. सो यू शुड नो, यू शुड ब्रेक डाउन कि यार आज ये कल ये. एंड तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है. बहुत लोगों को क्रिएटिव ब्लॉकेज हो जाती है, जो क्रिएटिव फील्ड में बहुत कॉमन टर्म है कि यार समझ नहीं आ रहा कि और क्या कॉन्टेंट बनाए, Sachin, है ना? कि समझ नहीं आ रहा और क्या कंटेंट बनाए. तो तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा चलते रहना चाहिए. तुम ट्रैवल कर रहे हो, सो 24 आवर्स एट द बैक ऑफ द माइंड आई वुड ऑलवेज हैव दिस थॉट कि यार मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या और चीज़ मैं पिक कर सकती हूँ. नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन से ही इतना कंटेंट मुझे मिल जाता है कि यार ये ट्रबल है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी और को भी ये प्रॉब्लम होगी, ये सोल्यूशन हम दे सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू क्रिएट योर कॉन्टेंट. एंड अपने पास एक नोट पैड रखो, जब भी कुछ नया चीज़ स्ट्राइक करे, जस्ट राइट इट डाउन. ऐसी कॉन्टेंट बनता है एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. So that means during the day you are into your job Yes. as well as thinking about the content. You're designing the content. Yes. And after during the evening you're creating that content. सी अगर तुम्हारी हॉबी है तो इट डजंट कम फोर्सफुल, लाइक यू सेइंग कि डे जॉब के साथ साथ ये भी है. एट द बैक ऑफ द माइंड ये ऑर्गेनिकली आ ही जाता है कोई ना कोई थॉट, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस है. तुम कहीं ना कहीं सोचोगे यार मैं और क्या इनपुट दूं और क्या करूं. Right. तो जॉब इज समथिंग दैट इज पेइंग योर बिल्स और तुम 9 घंटे डेडिकेटेड कर रहे हो, बट तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे 24 घंटे जा रहे हैं. 2 घंटे मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे को काम करना है उस पर डेडिकेशन के साथ, बट बाकी 22 घंटे भी तुम्हारा कहीं ना कहीं चलता रहेगा यार, हाँ ये और कर सकते हैं, ये और कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर तुम्हारा पैशन है, यू विल बी मोर ड्रिवन एंड मोर फोर्स तुम दोगे उसमें टू वर्क टुवर्ड्स इट. 22 घंटे पार्टी सोएगी कब? हाँ ठीक है ना. ये कट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ. राइट. नींद सपने में भी तुम्हारे को टारगेट दिखना चाहिए अपना. एक्चुअली ऐसा होता है, जब से मैं मेकअप में और ब्राइडल कंसल्टेंसी में आई हूँ, मेरे को रात को भी देयर आर सो मेनी टाइम्स कि मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी का मेकअप कर रही हूँ, किसी ब्राइड को कंसल्ट कर रही हूँ. तो ऐसा होता है, जिस चीज़ के बारे में तुम इतना ज़्यादा सोचते हो ना, तुम्हारे को सपने में भी आना शुरू हो जाता है. सो जब ऐसा होने लग जाए ना, तो सोचो कि ठीक है, कहीं ना कहीं तो तुम सही कुछ कर रहे हो. You know, a few days ago on Instagram, I posted a question that what should your school have taught you? And there were two options. One was how to handle your mental health, and the other one was how to turn a hobby into a career. Career, right. So I think we've already got a key point here that if you wish to turn a hobby into a career, the first thing you need to do is get yourself a job that pays you. Because at the end of the day, paying your bills on time, it really matters a lot. Exactly. And it is the backbone. I personally feel that it is the backbone of your mental health as Exactly. well. To some extent. I won't say to a complete extent. But yes, because when you pay your bills on time, your mind is automatically working very smoothly. तो वो रहता है कि अच्छा चलो ठीक है, सिर पे कोई Financial खर्चा नहीं stability है. के तो लिए. financial stability के लिए get yourself a job that pays you. Second thing, keep working on your hobby and take it as a side business. This is a very good key insight that if you take it as a side business only, then you'll be able to do it consistently. Exactly. Otherwise फिर वो hobby बन के रह जाएगी, it won't turn into a career. Exactly. And the alternate route, if you have a passion for something that can pay you directly, then I think you can Good take enough. a leap of faith. Faith, exactly. So that is a really good insight. So in this entire thing, what role has your school played in you coming out as a makeup artist, a bridal consultant, and as a creative person? So what role has your school played? सी मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर्मेटिव ईयर्स जो भी एक पर्सन के होते हैं ना, दैट प्लेज अ रियली मेजर रोल इन बिल्डिंग अ कैरेक्टर, इन बिल्डिंग अ सब्सटेंस, इन बिल्डिंग अ पर्सन. सो मेरे लिए स्कूल ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है. वी आर फ्रॉम DPS एंड ये तो जग जाहिर चीज़ है कि DPS एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फोर्स करता है. एकेडमिक्स का 19-20 नीचे हो सकता है, बट जितना पुश मुझे स्कूल से मिला है टू गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, स्टेज फियर हटाना, पब्लिक स्पीकिंग के लिए पुश करना, ये सारी चीज़ें हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन बिल्डिंग माई कैरेक्टर. सो आई रियली थैंक स्कूलिंग कि यार स्कूलिंग की वजह से ही बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है इन बिल्डिंग माई करियर. एंड नॉट जस्ट दैट, अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में नहीं भी हो, अगर तुम जॉब में भी हो, तुम कैसे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग में क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरे को स्कूल से बहुत ज़्यादा सीखने को मिली हैं. इवन माई कॉलेज, बट स्कूल का बहुत मेजर रोल रहा है इन बिल्डिंग अप माई कैरेक्टर. I think I resonate with you on that because if you wish to get into something that is directly related to academics, then school plays
ऑलमोस्ट 100% 100% रोल, ट्रू। बट अगर आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जाना है तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डिंग में और नेटवर्किंग में, ये सारी स्किल्स में आपका स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए ना स्कूल को कभी भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। चाहे बड़े स्कूल में हो, चाहे छोटे स्कूल में हो, चाहे आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, चाहे नहीं अच्छा कर पा रहे हो, साइंस का, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर गुड एट योर, इफ यू हैव गुड सॉफ्ट स्किल्स। आई टेल यू वन थिंग, हम जो स्कूल में होते हैं हमेशा एक रेस लगी रहती है यार कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। एंड हमें ग्रेजुएट करे हुए काफ़ी टाइम हो गया स्कूल से, एंड नाउ आई कैन टेल यू कि जो लोग एक्चुअली में पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे ना, जो सॉफ्ट स्किल्स में, नेटवर्किंग जैसे तुमने बोला, इन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, आई थिंक दे आर डूइंग मच बेटर इन द लाइफ बिकॉज दे विल एनी हाउ फाइंड अ वे टू डू इट। कुछ ना कुछ करके दे आर स्ट्रीट स्मार्ट और वो मार्केट रेडी हमेशा रहते हैं। दे नो हाउ टू फेस द वर्ल्ड एंड कॉन्कर एनीथिंग। सो दैट काइंड ऑफ स्किल सेट आई थिंक आपको स्कूल सिखाता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि तुम अकेडमिक्स में ही एक्सेल कर सकते हो। कुछ भी चीज़, कोई भी चैलेंज तुम्हारे को ज़िंदगी में मिल रहा है, यू शुड बी रेडी टू फेस इट। अगर तुम स्ट्रीट स्मार्ट हो, अगर तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है अपने में, एंड दैट आई थिंक एक कॉलेज या स्कूल बिल्ड करता है। एंड वन मोर वेरी गुड पॉइंट दैट यू पिक दिस कि ज़रूरी नहीं है कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्कूल से हो, बहुत ही प्राइवेट या एक्सपेंसिव स्कूल्स में से हो, तभी तुम कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर सकते हो। दैट्स सो नॉट ट्रू। अगर तुम्हारे में खुद में ज़ील है ना, MUNs होते हैं और टोस्ट मास्टर्स हैं, ये ऐसे क्लब्स हैं जो आउटसाइड स्कूल ऑपरेट करते हैं कॉलेजेस के लिए भी, जहाँ पे तुम जाके खुद ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिबेट्स कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं। अगर तुम्हारा स्कूल इज़ नॉट पुशिंग यू दैट मच, इतना इनकरेजिंग नहीं है, तब भी वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि ऐसे अलग अलग क्लब्स में जाओ जो तुम्हारी ऐसी स्किल्स को और एनहांस करे एंड हेल्प्स यू बिल्ड योर कैरेक्टर। सो दैट शुड ऑल्सो बी योर फोकस। तो अब जैसे ये क्रिएटिव फील्ड है, इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? क्योंकि when you see it from a distance, अब मेरे जैसे लेमैन के लिए तो ज़्यादा मुझे नहीं पता। all I know is कि you get to do makeups and people consult you for their bridal attire and stuff, but I'm sure there must be some other career prospects, some other opportunities that are aligned towards this field. So what are those fields? Could you please elaborate on that so that parents and kids get to know what exactly is there inside this, in this loop? ऑब्वियसली सी एवरीवन वांट्स कि उससे मोनेटाइज हम कुछ ना कुछ करें, पैसा कमाएं। इतना हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिटर्न मिल रहा है? सो वन थिंग अ लॉट ऑफ पीपल नो इज कि यार तुम इन्फ्लुएंसर बन गए, उसके बाद तुम्हारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पेड एड्स हो गए, प्रमोशंस के थ्रू पैसा मिल रहा है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर दी। मैंने बोल दिया कि यार तुम अमेजॉन का ये प्रोडक्ट ले लो इस लिंक, मेरे लिंक के थ्रू, और उससे मुझे कमीशन मिलेगा। दीज आर द टू मेजर थिंग्स जिसके बारे में लोगों को पता है। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी सोल्ड ऑन इंटरनेट, ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, in this domain और बी इट इन एनी डोमेन। आप सर्विसेज, आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। सपोज आई एम इन मेकअप इंडस्ट्री, सो मैं इसके बाद मेकअप के प्रोडक्ट्स बेच सकती हूँ अगर मैं अपनी ब्यूटी लाइन निकाल सकती हूँ। या फिर यू कैन सेल कोर्सेज ऑफ एनी प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, दिस इज ट्रू फॉर एवरी प्रोफेशन, नॉट जस्ट मेकअप इन पर्टिकुलर, बट आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू आर इन एजुकेशन, यू आर सेलिंग एजुकेशनल कोर्सेज। ठीक है, आप गिटार सीख रहे हो, आप गिटार के कोर्सेज दे सकते हो। आप सिंगिंग में हो, आप उसके कोर्सेज दे सकते हो। सो यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट कैन यू सेल, व्हाट मार्केट में लोग हैं जो आपसे खरीदना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी स्किल है जो मार्केट में ज़रूरत है और आप उसको बेच रहे हो। दैट इज़ द थिंग। ऑब्वियसली जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, पेड प्रमोशंस है, इससे दैट्स जस्ट वन पाई। आपके पूरे सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट है जिससे आपकी इनकम आ रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे आप कमा सकते हो। यू कैन गिव योर सर्विसेज, आप अपने कोर्सेज निकाल रहे हो। लाइक आई एम थिंकिंग कि मैं एक वर्कशॉप निकालूँ, जैसे कि मैं उसमें बता रही हूँ कि जो भी ब्राइड्स हैं जिनकी शादियाँ होने वाली है इन कमिंग नेक्स्ट 2 years, उनके लिए आई कैन हेल्प देम क्यूरेट कि यार ठीक है, आप ये पहनो, दिस कैन बी योर लुक। आपको रजवाड़ा लुक चाहिए, मारवाड़ी लुक चाहिए, या फिर मुगलई निज़ामी लुक चाहिए, कैसी लुक आपको चाहिए, कश्मीरी लुक चाहिए, उसके हिसाब से आई कैन हेल्प देम आउट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सेल, और इसमें आप वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हो। सो किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अगर ऑडियंस है, एंड नॉट जस्ट दैट कि आपके मिलियंस में या 100K 200K फॉलोअर्स होने चाहिए तभी आप मार्केट में अपनी चीज़ बेच सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन 100 फॉलोअर्स भी हैं ना, उसके साथ भी इफ़ यू नो दे आर लॉयल टू यू एंड दे आर लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, आपकी जो भी आप बात बोल रहे हो उसमें सब्सटेंस है, एंड दे नो यार ये बंदा जो भी एडवाइस करेगा सही करेगा। अगर आपका वो बॉन्ड क्रिएट हो गया अपनी ऑडियंस के साथ, एंड दे रिलाई ऑन यू फॉर लिटिल थिंग्स ऑल्सो, देन यू कैन सेल देम एनीथिंग। आप उनको कुछ भी बेच सकते हो, कोई भी सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट, एनीथिंग कैन बी सोल्ड। सो दीज आर द डिफरेंट वेज। ये तो आपको खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि यार ये मेरे पास चीज़ है, अब मैं इसको कैसे बेचूं। दैट इज योर क्रिएटिविटी, आप कैसे उसको बेचते हो। बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड ऑन इंटरनेट। So broadly what you can do is you can get into makeup
जो ग्राउंड वर्क जो है वो bridal consultancy, as you told, you can sell your courses, affiliate marketing, as well as influencer marketing. Influencer So marketing. broadly, there are 5-6 things that you can do. There are Yes. 5-6 types of opportunities Yes. that can come your way. Yes. Rest वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए और कितनी क्रिएट कर सकते हो. या मेकअप आर्टिस्ट का क्या है, या तो मैंने मेकअप कर दिया किसी पे, या फिर मैं सिखा रही हूँ यार, अगर आपको मेकअप नहीं करना है बट आप सीखना चाहते हो बेसिक मेकअप, तो वो हम सिखा सकते हैं. डेली लाइफ में आपको कैसे स्टाइलिंग करना है वो सिखा सकते हैं. सो अगर आपके पास कुछ भी स्किल सेट है आप उसको सिखा सकते हो, लोगों को बेच सकते हो. So I think this is very important to mention here that parents and even the kids, they do not know. I personally, I too don't know what are the career opportunities, but these are the opportunities that can come your way. And if you are willing to do something in this domain, you do not need to be Rigid, yeah. Yeah, you don't need to be Sky so is the scared. limit. But चलना, तेरे को नहीं लगता कि अगर सपोज करो कि एक बच्चा है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो उसके पेरेंट्स बालकनी से खड़े होकर देख रहे हैं कि यार ये तो सही इसने गोल मारा है, ये बहुत अच्छा ड्रिबल कर रहा है बॉल को, तो उनको एक ना विजुअली दिख जाता है. विजुअली वो पता कर सकते हैं कि ओके माय चाइल्ड कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड. कोई गिटार बहुत अच्छा बजा रहा है, कोई फ्लूट बहुत अच्छा बजा रहा है, पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो वो पता चल जाता है. बट मेकअप में एज मच एज आई नो कि यू नीड अ किट एंड किट्स आर एक्सपेंसिव. तो हाउ कैन अ पेरेंट फिगर आउट और हाउ कैन अ किड फिगर आउट कि वो इस डोमेन में अच्छा है भी या नहीं है, क्योंकि बिना किट के तो पता ही नहीं चलेगा. एंड फॉर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड इट, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई दैट फाइन लाइन कि अच्छा अब इतना ये कर रहा है ना, ओके आई नीड टू पुश माई किड. See, that is true. Vanities मेकअप की बहुत एक्सपेंसिव आती है. There is no doubt about it. It can go up to lakhs अगर आप प्रोफेशनल मेकअप किट खरीदना चाहते हो जिससे आप ब्राइड्स वगैरह का मेकअप करो. बट सी देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल. या तो एक जिसका बचपन से आपको देख लेता है यार इसमें स्किल सेट है, या फिर दूसरा जो अपनी स्किल पे काम करके उसको इम्प्रूव करता है. आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन. एक 12 साल का बच्चा है, ही इज फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज जस्ट 12-year गाय, लड़का है वो, और वो इतना अच्छा मेकअप करता है. आई कैन से कि वो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट से भी अच्छा मेकअप करता है. एंड ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स या बहुत ज़्यादा लाइटिंग और ऐसा कुछ नहीं है उसके पास. ही हैज़ अ बेसिक फ़ोन और उसके पास वही सारा मेकअप है जो उसकी मॉम करती हैं. उसके पास कोई बहुत ज़्यादा वाव मेकअप नहीं था, बेसिक जो डेली चीज़ों में मेकअप यूज़ करती हैं मॉम्स, सिर्फ उसी के साथ उसने अपना मेकअप की जर्नी शुरू की है. एंड नाउ ही इज़ एट आई थिंक 20-25K फॉलोअर्स. So he's doing really good for himself and that's a classic example कि you do not need a lot. तुम अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोलोगे यार मुझे एक पहले पूरा स्टूडियो सेटअप करके दो, मुझे लाइट्स चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे तो एक इन्फ्लुएंसर बनना है और मेरे को पहले वैनिटी ला के दो तभी मैं कुछ करूँगा. ऐसा नहीं है. अगर आपके पास बेसिक चीज़ें भी हैं, अब जिस मैं बच्चे का एग्जाम्पल दे रही हूँ 12-year-old का, व्हाट इज ही डूइंग, उसने बस बेसिक चीज़ों से करना शुरू किया एंड नाउ ब्रांड्स आर अप्रोचिंग हिम कि यार आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करो एंड टॉक अबाउट इट. आप मेकअप इतना अच्छा कर रहे हो और अच्छे इक्विपमेंट्स लो और अच्छे मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स लो. सो पीपल जॉइन विद यू इफ दे सी देयर इज अ टैलेंट. लोग जुड़ते जाते हैं आपके साथ एंड पीपल आपको इनकरेज करते हैं. बट शुरू का स्ट्रगल में, शुरू के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये बहुत सही चीज़ है बिकॉज आई बीन फॉलोइंग योर कंटेंट and I don't understand much. I don't understand a lot of content in this. I'm actually a fan of 2 of your content pieces. One is where you a few days ago you created a reel where you were telling everyone how you can convert your summer wedding dress into a winter wedding dress. Because there were some weddings, I guess they were supposed to happen during the summer months, time, and due to COVID and all, it got postponed. And the second one is where you upload stories and you ask, okay, this is the apparel and tell me which actress or which actor wore it. तो उससे पता चलता है कि आप कितना दिमाग लगा रहे हो. Exactly. I can figure out that it is very intelligent content. तो घूम फिर के बात सारी ये हो जाती है कि if you have the correct skill set and you know how to create content in today's world, something or the other will happen to you. Something good will happen to you and you need not invest a lot of money in that. True that. This is a very common notion कि अगर आपको आर्टिस्ट्री में जाना है, मतलब इस स्पेस में अगर आपको एंटर करना है तो आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा. So this is how you can, if you are a parent watching this episode, this is how you can figure out whether you need to push your child towards this creative field or not. So you can simply observe what your child is doing day to day level पे, क्या वो धीरे धीरे improve कर रहा है. You have to cut that ego thing कि नहीं मैंने ये बोल दिया कि ये वाली फील्ड में करना है तो इसी में ही करना है. क्या पता आपका बच्चा बहुत अच्छा किसी दूसरी फील्ड में कर जाए जो शायद आपको पसंद ना हो. सो यू जस्ट कट बैक अ लिटिल बिट ऑफ द ईगो, ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो क्या उसमें एक्चुअली अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा.
अगर वो उसमें इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट ऑल दी थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू, मतलब जिस आप अगर उसकी हेल्प करने की कोशिश करो उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहा है इवन विद द राइट गाइडेंस, दैट मीन्स यू वर राइट कि आप नहीं पुश करो उसको तो चलता है. बट अगर वो कर पा रहा है देन दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि वो पुश करने लायक है भी कि नहीं है. True that. That is great. Okay, if you were to advise a kid or a parent, what would that be? First of all, for the parent, I'll say please don't be that pushy. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो माइंडसेट है उसी के हिसाब से बच्चा भी काम करे. जनरेशन हैज़ चेंज्ड और आजकल की जनरेशन वो है जो इंटरनेट के साथ पैदा हुई है. 2000s के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं या लेट 90s में भी दे हैव सीन इंटरनेट वेरी क्लोजली एंड दे नो व्हाट अ बिग अपॉर्चुनिटी इट इज़. एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें एंड ये बच्चे फिगर आउट कर चुके हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग अप दिस. देर आर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. आई वुड लाइक टू टेल कि जब मैं ये सारा ब्लॉगिंग का करती हूँ मुझे इतने सारे कोलैबोरेशंस के मेल आते हैं फ्रॉम अ 16, 17, 18 ईयर ओल्ड किड्स जो अभी सिर्फ कॉलेज में गए हैं 19, 20 ईयर्स के, जो कहते हैं यार वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आप हमारे को मार्केटिंग कर दो. एंड आई एम मोर देन हैप्पी. आई फील सो प्राउड ऑफ दीज किड्स कि यार वो अपने सिर्फ बेसिक कॉलेज की पॉकेट मनी के लिए ही दे आर डूइंग सो मच. एंड अगर तुमने बेचना कुछ शुरू कर दिया ना, इफ़ यूर अ सेल्स पर्सन, और अगर तुम इतने छोटी उम्र में एक अच्छे सेल्स पर्सन बन जाते हो ना, देन स्काई इज द लिमिट. यू कैन एक्सेल इन एनीथिंग. अगर तुम कुछ भी बेच सकते हो लोगों को, यू हैव दैट कन्विंसिंग पावर टू ब्रिंग एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड पीपल आर परचेजिंग इट. इट्स अ वेरी बिग थिंग. दैट्स वन थिंग आई वुड से. एंड सेकंड थिंग इज, अगर कोई भी है जो कंटेंट क्रिएशन में या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है एंड दे वांट टू बिल्ड अ स्पेस एंड दे वांट टू बिल्ड देयर समथिंग एम्पायर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, वन थिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे कुछ अच्छा आता है तो मैं चल जाऊंगी. उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बैक इन 2015-14 में इफ़ यू न्यू समथिंग यू वुड हैव एक्सेल्ड. बट यहाँ पे अभी बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस ऑन इंटरनेट. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है. हाउ विल यू स्टैंड आउट ऑफ इट? सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा बिजनेस है, टेक इट एज योर बिजनेस. सोल की मैं इसमें पूरा अपना हार्ड एंड सोल डाल दूंगी. एंड नॉट जस्ट दैट कि मुझे सिर्फ एक स्किल आती है, मेरा एक पैशन है तो मैं वही रखूंगी और मैं कुछ नहीं सीखूंगी. हैव एन ओपन माइंड, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग. तुम्हें मार्केटिंग भी खुद करनी है. यू आर अ CMO, यू आर अ CTO, तुम हर चीज़ खुद ही हो. मार्केटिंग खुद करनी है तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. कैनवा पे पोस्टर्स वगैरह कैसे बनवाते हैं ये सब आपको आना चाहिए. प्रमोशंस कैसे रन करनी है, इनसाइट्स कैसे करने हैं. आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, तो मुझे समझ आता है कि यार कि जो इनसाइट्स आ रहे हैं मेरे, कब मेरी इंगेजमेंट लो जा रही है, हाई जा रही है, क्या कन्वर्जन रेट्स हैं, इन सबको समझना आना चाहिए. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट गो बिहाइंड. कोलैबोरेशंस के मेल्स कैसे करने हैं और जो आपके पास क्वेरीज आ रही है उनको एंटरटेन कैसे करना है. सो टेक इट एज अ बिजनेस. ठीक है, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा सीड इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा कुछ पैसे नहीं चाहिए, बट जितना भी तुम्हारा है तुम उसको फुल फ्लेजेडली करो और सब कुछ तुम्हें आना चाहिए. एडिटिंग से लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. आई थिंक जब तुम इस इंडस्ट्री में घुसोगे, तुम कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे, यू विल फिगर आउट, यू विल लर्न कि यार इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू मेकिंग वीडियोस. उसके बाकी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं. तुम्हारे को अपनी पिक्चर करेक्शन, थोड़ा फोटोशॉप आना चाहिए, कैनवा जैसे आई हैव टोल्ड, एडिटिंग आनी चाहिए. सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. यू कैन नॉट बी जस्ट कन्फाइंड टू वन थिंग. सो टेक इट. एंड अगर तुमने खुद मेहनत नहीं करी, नोबडी एल्स इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं यार मैं कंटेंट क्रिएट कर दूंगी, उसके बाद मैंने अपना PR टीम रख ली है जो सब मैनेज कर लेगी. बट अनटिल अनलेस यू नो कि तुम्हारे को अपनी PR टीम से क्या काम करवाना है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू शुड नो कि यार मेरी PR टीम है, मैं उनको तब बोलूँगा कि यार मेरी अभी एंगेजमेंट अच्छी चल रही है तो अब कुछ डाले. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट यू नीड टू नो. स्टोरी पे एंगेजमेंट कैसे बढ़ती है, क्या हमारे को क्वेश्चन आंसर्स राउंड ज़्यादा करने चाहिए, क्या है. सो ये सारा है कि तुम अपना डिजिटल मार्केटिंग पढ़ो, थोड़ा समझो इस स्पेस को, एंड देन ओनली जंप इनटू इट. So you started off by doing all these things by yourself. That is really great, because there is one misconception. I would now call it a misconception, because I had the same thought process, that if you are into cosmetics and content creation, you would require a team of at least 3-4 people to run your social media and to handle your PR and your mails, etc. But this is something which is very important that you mentioned, for at least especially for the kids who are simply looking at the Wonderland part. Yeah, exactly. है ना. तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस फील्ड में भी जा रहे हो, इट इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, डेफिनेटली इट्स अ कोर क्रिएटिव फील्ड, बट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दी ग्राउंड बिजनेस एस्पेक्ट्स. उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, वो आपको करने ही पड़ेंगे. वो एक्सेल शीट्स भी आपको हो सकता है बनानी पड़े. सो दैट मीन्स योर IT हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट. I would definitely say that IT has definitely helped me.
कि मैं कैसे एनालाइज करना है. आई टोल्ड यू आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, तो मुझे पता है कि यार ठीक है मेरे को डेटा एनालाइज करना है. अगर आप यूट्यूब पे भी हो या इंस्टाग्राम पे हो, आपको आपके प्रॉपर इनसाइट्स मिलते हैं मंथली, वीकली. यू वुड हैव ऑल्सो नोन दिस. तो उसको रीड करना आना चाहिए, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए. एंड यू टॉकिंग अबाउट एक्सेल, देयर हैव बीन अ टाइम्स जब मैंने एक्सेल पे पूरा अपना ब्रेक डाउन किया है यार कि मैं क्या क्या कर रही हूँ. एंड दैट्स हाउ आई कन्विंस माई पेरेंट्स कि यार देखो ये मेरे एस्पेक्ट्स हैं, मेरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ये है, मैं ऐसे सोच रही हूँ, दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस. सो बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं. ऑब्वियसली मैंने जो जॉब करी है उससे मुझे बहुत पुश और बहुत अंडरस्टैंडिंग मिला है ह्यूमन बिहेवियर का और उन सब चीज़ों का भी, विच हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट. So if a kid is watching this episode, भाई पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, कोई जॉब भी करनी पड़ेगी टू पे योर बिल्स. और जो भी तुम जॉब में कर रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो या स्कूलिंग का जो एंटायर प्रोसेस है वो तुमको काम आने वाला है काफ़ी. और वो जो ग्राउंड वर्क है उससे आप नहीं भाग सकते सिर्फ ये सोच के कि मैं खाली क्रिएटिव वर्क करूँगा. आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू रन अ फुल फ्लेज बिजनेस, बी इट अ स्मॉल और अ लार्ज बिजनेस, इट डजंट मैटर. और द अदर थिंग यू कैन डू इज वर्क समवन हु इज ऑलरेडी रेनाउंड. तो उनसे सीखो, वो भी एक ऑल्टरनेट राउट है. बट इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, देन यू वुड स्टिल हैव टू डू ऑल द स्टफ जिससे नॉर्मली सब लोग भागते रहते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, वो सब आपको करना पड़ेगा. और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आपने बीटेक करी है, फिर उसके बाद आपने जॉब करी है एंड उसके बाद आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अराउंड ब्राइडल कंसल्टेंसी. सो हाउ वाज दिस? आई वुड से इट्स अ जर्नी. 20s में इतना रिजिड होके मत रहो कि यार मैं ग्रेजुएशन करने के बाद उसी में चलूँगा. फ्लेक्सिबिलिटी रखो, कीप योर ब्रेन फर्टाइल. किसी भी चीज़ में इतना रिजिड मत रहो, डोंट होल्ड बैक योर सेल्फ. कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार आई कैन स्विच, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बेटर है, गो फॉर इट. इट्स अ ओपन स्काई. लर्न. एंड 20s में इतना लोड मत लो यार कि मुझे कमाना है एंड आई वांट टू बी अ मिलियनियर बिलियनियर. जस्ट फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू. एक बार करियर पाथ आपको अच्छा मिल गया ना, देन यू विल नेविगेट एंड यू विल फाइंड योर वे. बट डोंट बी लाइक कि मैं बीटेक कर ली तो मैं इसी फील्ड में ही रहूँगा, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा. थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो. So one last question and then we'll wind it up. Have you been happier through this hustle? And you know, sometimes there must have been times where you would have missed out on the fun because you were creating content after your job. Have you been happier or you've just been exhausted? It would be a big lie अगर मैं कहूँ कि there were no lows. Obviously it's a roller coaster ride. Up and downs होते ही रहते हैं. Sometimes you'll have self doubt यार कि मैं सही कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. But just believe your inner gut, जिसमें तुमने इतनी मेहनत की है वो fruitful रहेगा. Give it a shot and I am happier. Obviously I am happier. If you see my journey and if you see my path, I think I'm heading towards a better place. That's really great to know. So let's wind it up now. Yeah. ठीक है. So if you like this episode, simply hit the like button, share with someone who needs to listen to this conversation, and don't forget to subscribe and don't forget to follow Sanjana Bhatia Official and watch out for the intelligent content that she creates. ठीक है, thank you so much Sanjana for coming. Thank you Madhav, thank you for having me. It was a pleasure, it was so much fun. It was fun. a fun conversation. And I want to see you again. Okay. Thank you. Cut.